कि दादी भी कहती थी कि सिल्वर के ग्लास में पानी पिया करो। Silver is what has made palaces over the centuries. जब आप इसको घर में उतारते हैं तो आप मून की एनर्जी को लेकर आते हैं। And how would Dr. Jay Madan define spirituality? So spirituality has nothing to do with religion. So what is the importance of silver? Because a lot of people, discuss gold a lot of times. But silver is an element कि दादी भी कहती थी कि सिल्वर के ग्लास में पानी पिया करो. So what is that impact? How can you include that in your life? See, I believe that art is something that should first have meaning and secondly it should be appreciative. Now looking at the gold and silver prices, अगर आप सिल्वर घर में रख रहे हो तो वो सुंदर तो लग ही रहा है और वो बैठे बैठे बढ़ भी रहा है। हर दिन उसका कॉस्ट बढ़ रहा है ना, हर 3 महीने बाद उसमें इन्फ्लेशन आ रहा है। एंड महलों में और हवेलियों में क्या फर्क होता था? ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टफ इनसाइड। एक हवेली भी बड़ी हो सकती है और महल भी छोटा हो सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या है इज व्हाट मेक्स इट अ पैलेस। सिल्वर इज व्हाट हैज मेड पैलेसेस ओवर द सेंचुरीज, बी इट फ्रेंच, एनी अदर यूरोपियन, समथिंग मोर टुवर्ड्स द टर्किश और इंडियन। इस मेटल ने हमेशा महलों को महल बनाया है। तो जब आप इसको घर में उतारते हैं तो आप मून की एनर्जी को लेकर आते हैं। यू ब्रिंग and balance a planet called moon, which is about emotional balance. इसीलिए कहा जाता था कि चांदी के ग्लास में पानी पियो, so that ये ठंडक तो देता है ये बॉडी को, it helps and creates your immunity in a much stronger way. इसीलिए आयुर्वेद में सोने की भस्म यूज होती है, मोती की भस्म यूज होती है, चांदी की भस्म यूज होती है. It is very good to keep your mind calm, your body cool, you in a relaxed state, and emotional balance it creates in a house. And how would Dr. Jay Madan define spirituality? So spirituality has nothing to do with religion. If you're ritualistic, you're religious, it's very good, but that's not being spiritual. Spiritual word came from a root of a word called spiritos, which means spirit. So if you are in the spirit, that means if you're in the present, spirit is what? Your breath. Yeah. Spiritos means your breath. So your breath, if you are with the breath, you are in the ritual of the breath, that means you're spiritual. तो अगर आप अपनी present में अभी हो, you know how to stay in your present, you're spiritual. It is not about you being meditative or you doing this or that karma. It means if you know how to be in present, you're spiritual. And what would you like to talk about water rituals? I mean, I have seen a lot of videos and people are still a little confused about what exactly it is. So, anything you would love to share with them? So every religion uses water, from Muslims to Christians to Buddhism to Sikh अमृत छकाते हैं, to Hindus, जल पिलाते हैं या जल में नहाते हैं. You will see water linked in every religion in some way or the other. Because it's the first element that you're closest to. Yeah. Life generated from water. Christianity believes that. Hinduism believes हमारे पहले अवतार थे मत्स्य अवतार, which is out of water. The baby, the womb, the child comes to your water bag. If water bag leaks, child has to come out. So life actually originates from water. That means जो पानी है उसको अब तो साइंस भी इस चीज को मानता है. From Stanford universities to different universities have come to a conclusion of understanding it under minutest microscopic level is that पानी के molecular formula change हो जाते हैं. आप उसको जैसी डायरेक्शन और अफर्मेशन देते हो वो स्प्रेड आउट हो जाता है या श्रिंक हो जाता है. इसीलिए लोग पानी के पास बैठ के पोइट्री करते हैं, लोग पानी के पास बैठ के ध्यान करते हैं. गंगा जी ऋषिकेश के पास आकर अलग वाइब्रेशन देती हैं, हरिद्वार में जाकर अलग वाइब्रेशन देती हैं, गंगोत्री पे अलग देती हैं. वही गंगा ऊपर से नीचे तक आते आते आपका भाव बदलती रहती है. क्योंकि ऋषिकेश में बहुत ऋषियों ने तपस्या की, हरिद्वार में कर्म कांड हुआ, गंगोत्री में तप हुआ, तो आप वैसा ही वहां जाकर फील करते हैं. तो जब पानी ही सब कुछ कर रहा है तो आपके घर में भी तो वही पानी है और आप उसको कंज्यूम कर रहे हो. तो जब आप इसको अफर्मेशंस के साथ वीव कर देते हो, व्हेन यू पुट अफर्मेशंस ऑन द बॉटल, यू टच इट एंड pray, and then when you consume it, it changes everything in your body, in your cells, in your thinking pattern, in your neuron pattern, and that's the beauty of water. And what is aura, doctor? Because lot of people say मैं इसके घर गया था मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा, या मैं किसी के घर गया और मेरा बहुत अच्छा वक्त बीत गया, पता ही नहीं चला 4 घंटे बिता लिए, और फिर कोई जवाब देता है कि अरे वो उसका ऑरा ही वैसा है. So what would you see about aura? So, जो हम महसूस करते हैं वो वाइब्रेशन है, और जो ऑरा होता है वो एक इंसान का होता है. ये कभी कभी बढ़ता है, कभी कभी घटता है, कभी कभी डिफरेंट कलर्स लेता है. ऐसे समझते हैं कि
जब आप किसी सेंट या किसी गुरु या बड़े टीचर के पास जाते हैं तो वो आपसे बहुत दूर बैठे होते हैं स्टेज पे, वो तो आपको नहीं देख सकते, बट उनके होने से और उनको सुनने से क्या आपको बेहतर महसूस होता है? दे आर नॉट एडिंग एनीथिंग टू योर लाइफ बट यू आर फिलिंग एंड फुलफिलिंग योर सेल्फ एट दैट मोमेंट। तो जब किसी का आउटर स्फेयर, इसको मैं और सिंपल तरीके से समझाती हूँ। अगर आपके घर के बाहर कोई आदमी ऐसे बैठ जाए और सिर्फ आपके घर को देखता रहे देखता रहे देखता रहे, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो क्या आप पुलिस कंप्लेन करोगे? क्यों? Why would you do that? Because you will not feel safe, you'll feel something is. But you haven't bought the road, you haven't bought the air, and you haven't bought his eyes. पर क्योंकि आपको लग रहा है कि वो आपके घर को देख रहा है तो आप अनईजी फील हो रहे हो, पर ना वो घर के अंदर आ रहा है और ना वो घर को छू रहा है, पर वो देख रहा है। ये आपके घर की और एक फील्ड है जो आपको फील होती है कि अगर मेरे घर के आसपास खड़े होके कोई मुझे देख रहा है तो मैं अनईजी हो जाऊंगी।